Good morning, my dear friends of Standard 8, and today we are going to see, as you can see on your screen, chapter number 4, How the Trader Become Rulers. इनिशियली ये जो हिंट दे रखा है ये इस बारे में दे रखा है कि ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम टू इंडिया इनिशियली दे वे द ट्रेडर्स बट दे सी इंडियन किंग्स आर फाइटिंग एंड उन्होंने आके उसका एडवांटेज लिया एंड दे एस्टेब्लिश देयर रूल ऑन इंडिया. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑन द राइट पार्ट 2 cats एंड अ मंकी. ये स्टोरी हम सब जानते हैं. ओके, द 2 cats वेर फाइटिंग एंड द मंकी टूक एडवांटेज. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ द स्टोरी. You just we have to remember that the cat those who are fighting na, they were the Indian kings, and the monkey who took the advantage, they were the Britishers. Okay, so initially in the initial part of the paragraph you will see that only, and it's a conversation between the two children and one of them is Jay. Okay, so initially when the Britishers came to India, they were the traders only and they were doing the trading activity, but meanwhile the Indian kings they were fighting and the Britishers took advantage. The Britishers were very smart and they took the advantage of the situation. Let's move to the next slide. So here it is written Wellesley policy of expansion. So friends, before starting this topic, let me inform you some scenario. When the Britishers were the traders, they have facing a lot of competition from the French people. So what they want to do, they want to remove the French people from their way. So they made a plan, and that plan is known as the subsidiary alliance policy to counter the France. And now the things come in your mind. What is subsidiary alliance? Well, in subsidiary alliance, the Britishers convince all the native kings that we are your friends. We will help you if anybody attack on you. Just there are some point we have to remember that the Britishers convince them that we have to put a little army in your area and in your kingdom, of course, and that army, all the expenses are met by the king only. So now through this tactic, the Britishers, they not even have to spend a single money, and the army of Britishers which is there in the native kings, they to call the information, है ना. उनको पता चल जाता है ना कितने घोड़सवार हैं, इनकी आर्मी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इनकी आर्मी का वीक पॉइंट क्या है, एंड दिस इज हाउ दे टुक कंट्रोल. So who were those who had accepted the subsidiary alliance? Well, you can see the last few lines: Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwad of Vadodara, Peshwa of Pune, Sindhya of Gwalior. So all these kings, they accepted the policy of Wellesley policy of subsidiary alliance. Okay, let us move to the next slide. Well, Lord Wellesley photo is given. Nizam is the first person that accepted the subsidiary alliance. Later on, joined by the Mysore and Ayodhya. Tanjore and Karnataka also joined them. So, subsidiary alliance policy. Now, think from the Indian king's perspective. Now, ये king क्या सोच रहे हैं? अरे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स हमारे फ्रेंड हैं, अगर कोई किंग अटैक भी करता है तो दे आर गोइंग टू हेल्प अस, एंड दिस मेक इंडियन किंग्स लेजी. इससे हमारे इंडियन किंग्स लेजी बन जाते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ओनली प्रॉब्लम द ब्रिटिशर्स फेसिंग इज द मैसूर. Mysore is the kingdom which is supporting the French people, and Britishers, they don't like the French. So first they decided to launch an attack on Mysore. So they know one thing very well. They did if they direct attack on Mysore, then they can't defeat them. So what they did, उन्होंने एक अलायंस बनाया, and that alliance of Marathas and Nizam of Hyderabad and Britishers, ये तीनों आर्मी कंबाइन होती है और मैसूर पे अटैक करती है. इन अवर बुक नॉट गिवन इन डिटेल, बट 4 मैसूर वॉर हुए थे. फर्स्ट 2 वॉर्स हैदर अली के साथ हुआ था, देन उनके सन टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, एंड सम हाउ दे टू कंट्रोल ओवर द मैसूर ऑल्सो. सो इवन जैसे ही उनके अंडर में मैसूर आ जाता है, नाउ द मराठा पीपल स्टार्टेड फाइटिंग टुगेदर. ओके, एंड इसका एडवांटेज लेके ब्रिटिशर्स ने फिर मराठास को भी हराया.
एंड सब्सिडी अलायंस से पता चल ही आता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है क्या है. सो ब्रिटिशर्स वेरी स्मार्टली इस्टेब्लिश देयर रूल. उन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज का यूज़ किया एंड उन्होंने बस हम किंग्स को आपस में बस लड़वाते ही रहे. एंड 7 ईयर्स में जो ये पॉलिसी बनाई थी उन्होंने सब्सिडी अलायंस वाली, काम कर गई. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here is the on your screen map is given, and on map you can see some of the state. Even you can see on your मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ. ओके, सो लखनऊ, ग्वालियर, सिंधिया, अयोध्या, सो ऑल सच प्लेसेज आर गिवन जो मैंने भी आपके साथ में डिस्कस किया था. ओके, सो इस तरह से वो लोग सो इनिशियली दे अटैक ऑन मैसूर. निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा लोन दिया था तो लोन के हिसाब से उनको बहुत इजीली हो गया. देन उन्होंने मराठास को हटा दिया. नाउ इफ़ यू सी द इंडियन मैप, टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है तो नीचे का लगभग सारा इंडिया ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं. नाउ अब इनको फोकस करना है ऊपर नॉर्थ की तरफ. बट नॉर्थ में प्रॉब्लम है. नॉर्थ में है महाराजा रंजीत सिंह एंड दे ब्रिटिशर्स नो वन थिंग वेरी वेल. इफ़ दे लॉन्च एन अटैक ऑन महाराजा रंजीत सिंह तो दांव उल्टा भी पड़ सकता है ना. ऐसा ना हो कि सरदार जी का दिमाग घूम गया, कहीं उनको बंगाल भी ना हारना पड़े और वापस इंग्लैंड ना जाना पड़े. सो व्हाट दे डिड नाउ हियर, दे वेट फॉर द राइट टाइम. उन्होंने सही टाइम का वेट किया. व्हाट द ब्रिटिशर्स डज, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप की, है ना. और जो गुजरात के आसपास वाला जो पाकिस्तान का एरिया है उसको सिंध बोलते हैं, उस पर अटैक किया महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के साथ. एंड देन दे टुक कंट्रोल. देन दे अगेन अटैक लॉन्च ऑन द अफगानिस्तान एंड शेयर कर लिया. एंड जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, ब्रिटिशर्स ने मौका देख के पहले तो सारे पंजाब के किंगों को आपस में लड़वाया एंड जब वो वीक हो जाते हैं तब उन पर अटैक लॉन्च कर दिया. ओके, जब तक रंजीत सिंह थे उनकी हिम्मत नहीं हुई. बट एनी हाउ उन्होंने बस मंकी की तरह एडवांटेज ही लिया है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो आफ्टर द बंगाल द होल कंट्री कम टू अंडर देयर रूल एंड दे स्टार्टेड रूलिंग इन अवर कंट्री. वी कैन से 1757 एंड 1857 आते आते, यानी उनको 100 साल लगे थे पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए. ओके, यहाँ पे थिंक में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो मैं वो ज़रा रीड कर लेता हूँ. वाई डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर रूल फर्स्ट इन बंगाल. तो बंगाल में क्यों इस्टेब्लिश किया? ऑफकोर्स वो समुद्र बे ऑफ बंगाल के पास में समुद्र से उनके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा. डेट इज़ वाई. वाई वॉज इट असेंशियल फॉर द ब्रिटिशर्स टू कॉन्कर द सिख एंड द अफगान टेरिटरीज. अगर पूरा इंडिया उनके अंडर में आ जाता है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू टुक द कंट्रोल और उनको बहुत ही ईजिली रॉ मटेरियल मिल जाएगा. ब्रिटिशर्स लिखा है मीन्स वी हैव टू एज्यूम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, हाउ कुड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर रूल ऑल ओवर द इंडिया डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ स्मॉल आर्मी. है ना, टैक्टिक थी ना, आपस में लड़वाते थे, फ्रेंडली अलायंस करते थे और जब वो फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो उनको भी आपस में लड़वा के ईजिली कर लेते थे. सो इट्स कॉल्ड डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स, है ना. कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि हमको दुश्मन को हराना है तो हमारे अंदर ताकत ज़्यादा होनी चाहिए. वेल हम लोग अपनी ब्रेन का और टैक्टिकल चीज़ों का यूज़ करके भी उसको कर सकते हैं. नाउ हियर डलहौजी पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली. में थोड़ा स्क्रीन को एक्सपांड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजिली व्यू हो. वेल डलहौजी ने पहले तो बहुत सारे डलहौजी ने सोचा कि ना अब बहुत सारे जो किंग्स हैं वो इरिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स पे डिपेंड कर रहे हैं. एंड जब वो डिपेंड कर ही रहे हैं तो इट इज़ राइट टाइम फॉर देम टू अटैक ऑन देम एंड उनके किंगडम को अपने अंडर में कर लेना. एंड उन्होंने बहुत सारे स्टेट के साथ ये किया भी. ओके, बट नॉट ओनली दिस, देर आर सर्टेन गुड थिंग दैट हैपन इन द ब्रिटिशर्स रूल. यू कैन सी इन द पिक्चर द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया थाने से मुंबई चली थी एंड 60 किलोमीटर. एंड बाद में इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी. दैट पॉलिसी इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. नाउ व्हाट इज दिस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन? बहुत हो गया, अब डायरेक्टली सारे किंगडम को अपने अंडर में कर लो, है ना. एंड पंजाब एंड बर्मा पे उन्होंने अटैक किया. एंड देर आर सर्टेन किंग्स जिनके पास उनके खुद के कोई मतलब सन नहीं थे, है ना, जिनको हम वारिस बोलते हैं. एंड उन्होंने एक और पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि जो किंगडम जिनके पास कोई खुद का सन नहीं है तो वो किंगडम अब डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाएगा. तो बहुत सारे किंग ने इसका विरोध किया. झांसी की रानी आपने लोगों ने स्टोरी सुनी होगी.
तो ये मूवीज़ भी देखी होंगी, तो इन लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन समहाउ ब्रिटिशर्स उनके किंगडम को अपने अंडर में करने में कामयाब होते। तो ऐसे कौन से किंगडम थे? सतारा, झांसी, नागपुर। तो ये उनकी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का शिकार हो जाते हैं। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो डलहौजी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया, एंड मैंने जैसा कहा था ये तो चलो नेगेटिव साइड थे, कुछ पॉजिटिव साइड क्या थे? उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस ओपन किए, उन्होंने रेलवे ओपन किए। ओके, 1853 वॉज द ईयर जब वो रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी, एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर। वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, पोस्टल सर्विस स्टार्ट की, इंग्लिश एजुकेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में उन्होंने यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की थी। एंड थिंक में आ जाते हैं, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर रूल ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड विद द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। हाउ दिस हैपन? यू नो इट ऑल द आंसर वेरी वेल। ओके, आगे चलते हैं। यू गेट अ बुक published in England with details of the victory of the British in India, and what will be your feedback or response after reading it? सी आपको अभी अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक ब्रिटिश नागरिक समझना है, एंड आप लोग इंग्लैंड में रहते हो और आप उनके न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन किंग का ये किंगडम जीत लिया, ये किंगडम जीत लिया, और भी बहुत लिमिटेड टाइम में, है ना, बिकॉज ऑफ द मुझे नहीं बोलना चाहिए स्टूपिडिटी ऑफ द इंडियन किंग, है ना। वो कभी आपस में एकजुट हुए नहीं, और हुए भी तो कमज़ोर मन से हुए, और वो ब्रिटिशर्स के सामने कभी लड़ नहीं पाए। ओके, एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, दैट डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल। सी बहुत लोग तो ब्रिटिश रूल से खुश भी थे, लेकिन कुछ लोग डिससेटिस्फाई थे, एंड जैसे उन इंडियन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए अब रियल खतरा बन गए हैं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, एंड ब्रिटिशर्स ने लगभग हमारे पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था, है ना। आप लोगों ने सब मूवी क्रांति और मंगल पांडे जैसी मूवी में देखा होगा। क्रांति वेरी गुड मूवी, जहाँ पे दिखाया गया है कि इंडियंस पे कैसे वो लोग टॉर्चर करते थे, है ना, चाबुक मारते थे और खाना भी नहीं देते थे। मंगल पांडे इज़ वन ऑफ द सच मूवी, मैंने अभी तक देखी नहीं है। एनी हाउ, वेल, ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन क्यों स्टार्ट किया, ये एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, ताकि उनको इंडिया में ऐसे लोग मिले जो इंग्लिश समझ सकें, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू इस्टेब्लिश देयर रूल। ओके फ्रेंड्स, आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, एंड इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स वी आर गोइंग टू सी, जितने भी ये नाराज़ लोग होते हैं ना, ये 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो हियर आवर चैप्टर नंबर 4 डिस्कशन पार्ट इज ओवर। होप सो यू विल लाइक इट, एंड रिमेंबर यहाँ से हमको क्या टीचिंग मिलता है, कभी भी कैट की तरह फाइट नहीं करना है, वरना हमेशा ज़िंदगी में बहुत सारे मंकीज बैठे हैं, रेडी बैठे हैं हमारा एडवांटेज उठाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप सो यू लाइक इट, हैव अ नाइस डे।